Hallelujah. 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 Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lamb is holy. Lamb is worthy. I worship the Lamb. Lamb of God, you are worthy. 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 Lamb of God, you are worthy, worthy Lord, worthy King, worthy Lord. I exalt your holy name. I exalt your holy name. I lift you up on high. Your majesty fills my heart. Your glory surrounds me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, early in the morning I seek thee. Early in the morning will I set my face like flint towards thee. Early in the morning will my plea come before thee. Early in the morning, O Lord, my cry shall ascend your throne. Hallelujah. Early in the morning my cry shall ascend your throne, O King of glory. King of glory, hallelujah. For I shall set my face like flint early in the morning, and I will approach your throne room, O Father, through the precious blood of your Son Yahushua HaMashiach. Through the precious blood, the glorious blood that is spilled on the cross of Calvary has paved a new and a living way. I tread no other path. I walk on no other path, no other road. I walk on the path that is paved by the blood of the Lamb, and this is the narrow path, Lord. Hallelujah. And I press through the narrow gate. I move on the narrow path. Lord, thank you that seeking you is an exciting journey.
Thank you, Lord, that pursuing you is a feast, Lord, is a festival. Lord God, is a consistent daily journey of running after you. Thank you, Lord, that seeking you, you never made a destination, but rather a glorious journey. So, Lord God, early in the morning here, we come before you that we may glean the morning dew that falls from heaven. Hallelujah. The freshness that comes from your throne. Hallelujah. Father, I pray in the name of Jesus, as you said in book of Zechariah, unto the priest Joshua, who stood in your supreme court, and at his right hand was the adversary, the accuser, to accuse him, because his garments were stained and polluted. But there was Jesus of Nazareth, the angel of the Lord, also standing there. Hallelujah. And the angel of the Lord came in defense of the high priest of the children of Israel as they were rebuilding the temple. Hallelujah. And the angel of the Lord, the second Yahweh, said, Behold, I remove your iniquity. And he said unto those who were standing there, Put on him new raiment. Hallelujah. Give him a new turban. You gave him new garments. They are the garments of your righteousness. So, Lord, we boast of nothing besides the garment of your righteousness that you have given us. These are the garments of the glory of Yahushua HaMashiach. So I put on the garments of righteousness, Lord. And it is your righteousness, not our own righteousness. It is your merit, Jesus, not our merit. And Lord, we tread on that path, we come before you. Lord, you said, after you gave set of new clothes to the high priest, Joshua, Lord, you gave him a decree. You said, if you keep my word, if you do my bidding, then I will give you charge here among those who are standing. Lord, you gave charge. You said that the high priest could ascend to the heaven, that the high priest could ascend into your presence, that the high priest could ascend into the council, into the council room, that even the high priest could attend the meeting of the watchers, the holy sacred watchers who take decisions on your behalf. Lord, hallelujah, you told the high priest that he could become a chancellor, that he could represent his people. And that is the assignment you have given us. You made us the royal priesthood on the earth. That, Lord, we come before you. We present nations before you. Hallelujah. Lord, thank you that you said in your word, Psalm number 2, ask of me and I shall give you the nations as your inheritance. Lord, this is Psalm for my master, my King Yahushua HaMashiach, that I, being his servant, may ask you that you may grant my King, that you may grant my master the nations of the earth as his perpetual possession. The nations belong to him. Every soul upon this planet belongs to Jesus. Lord, when I cry, when I pray for nations of the earth, for the kindred clans and the families of the earth, when I ask you that you give them to my master, to my redeeming King, Jesus as his inheritance, Jesus just gets the due reward of his suffering on the cross. My King gets nothing more than the due reward of his suffering on the cross. So I pray for nations. I lift up a lament, O Lord, before your throne. Mankind is languishing all over the world. There is so much deception and darkness. There is so much evil, Lord. Lord, there is a remnant that has risen up that calls the evil good and good evil. Lord, I see the church deluded. Lord, I see the leaders having no clue. Lord, your word is becoming rare and there is no open vision. Lord, let your light come, I pray thee. Let your spirit move, Lord.
Let your Holy Spirit move like the Holy Spirit moved never before. Hallelujah. Lord, let there be mighty harvest coming in your barns. Let there be mighty harvest coming in your barns. Lord, we pray for the nations of the earth. We pray for the nations of the earth, Lord. We pray for the nations of the earth. Hallelujah. Show your glory. Show your face. Unravel your splendor. Move in the earth, Lord, we pray thee. Move, move. Lord, I pray in the name of Jesus for Israel. I pray, Father, that your Spirit will move. Lord, that they will not cut the covenant with death. They will not cut the covenant with death, Lord. Lord, you love my patriarch Abraham. You love my patriarch Isaac. You love my patriarch Jacob, and you made him Israel. You love the 12 tribes of Israel. I pray, Lord, that they will make Aliyah wherever they are. They'll return to their homeland. You said on the eagle's wing you will bring them back. In your anger and hot displeasure, Lord God, you smote them. And Lord, you dispersed them to the ends of the earth. But you said that my compassion will bring them back. So I pray for Israel, Lord, that your Spirit will bring back the 12 houses of Israel. I pray for the salvation of Israel. I pray, Lord, that the 12 tribes of Israel shall see the face of their King. They shall see the face of the one they pierced. Lord, that there will be revival among the Jews. They will come at the feet of the Lord Jesus. They will acknowledge him as their King, for he is the true Messiah. But the false one is coming, and Jesus already said, the one who is false, the one who is fake, in him you shall believe. Lord, I pray that you will save the household of Israel. I pray for Israel, Lord. I pray for the shalom of Israel. You commanded us to pray for the shalom of Israel. You said they shall prosper that love thee. Lord, you know I love Israel. Lord, you know that my household loves Israel. Lord, I sense that my destiny is intertwined with Israel. Therefore, Lord, for years I groan before you and I cry for you, that your purpose is, Lord, that your end time purpose for Israel shall be fulfilled. The enemy shall not sabotage their destiny. The enemy shall not hijack the glory that you have given to Israel, Lord. O King of glory, stretch forth your hand. Raise up watchmen on the wall, Lord. Let there be mighty moving of your Spirit in Israel that the mankind has never seen before. Father, I also pray for the United States of America. Whatever understanding I have, Lord, whatever you have given insight to your servant, I pray, Father, the forces of darkness are wreaking havoc. Wreaking havoc, Lord. There are so many dark forces in Israel. Antifa, Black Lives Matters, and those who are rioting on the streets and the roads, the libertad, the Democrats who are absolutely evil. Lord, all sorts of elite and Marxism and socialism that is merging with radical Islam, and Lord, witchcraft and sorcery and all kind of evil and perversion that is being unleashed on the streets of United States of America. The forces of darkness are trying to take away the youth of the American people. I pray, Father, in the name of Jesus, that your Spirit will move. Lord, that your Spirit will move. I pray for President Trump, that you will protect him, that you will keep him under the shades of your mighty hand. Father, that there will be true pastors and leadership who are in his advisory body, true men and women of God, not those, Lord, who have liberal values, but those who draw strength, value and heritage, the Christian Judean heritage. Lord, I pray thee in the name of Jesus of Nazareth. Lord, I pray for a move of your Spirit to come in India, Lord, for the move of your Spirit to come in a land, from the north to the south, from the east to the west, Lord. Hallelujah. In every state of India, that there will be a great revival. I know, Lord, you're going to shake political corridors in India. You're going to shake the journalism, media like you did never before. You are establishing justice all over the world.
Lord, I can sense this is the hour of justice. You are establishing justice all over the world. Your justice is coming upon the earth in every arena of human life. Lord, your justice is falling. Your truth shall prevail, Lord. Hallelujah. Lord, you said that church will become apostate in the end time. Church will be deceived massively. There will be massive deception inside the church. Lord, but you also said that your glory will rise upon the remnant. Lord, that your glory will shine upon them that seek thee. Your hand will come upon them, Lord. Lord, that seek your word. Your spirit will come upon them who seek your counsel. Hallelujah. Lord, he who seeks you will find you. You are only found by them that seek you. You look for people that will seek you diligently. Your word says the eyes of the Lord go from one end of the earth to the other, looking for the sons of soil and looking for a heart that is seeking the Lord. Hallelujah. Lord, your heart is searching human hearts. Lord, I pray this morning for Tanuja Seth. Lord, that you will bless her. Make her seeker of your face. Move into her family, Lord, I pray thee. Let there be true birthing of a great revival. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, I pray for fresh grace to be poured upon her and her household, Lord. And Father, I pray for Rick Carlton who joined us. Yet you bless him and his household. I pray for Jaswant Singh, for your hand, for your spirit to move upon his heart in the name of Jesus. Lord, raise up men and women who will pray early morning, who will seek you, who will set their hearts to know you. Hallelujah. हम तेरी परस्तिश करते हैं. Excuse me. हम तेरे नाम की इबादत करते हैं. हम तुझे जलाल देते हैं. हम तुझे ढूंढते हैं खुदावन. हालेलुया. हम तुझे ढूंढते हैं क्योंकि तू मिलता है उन्हें जो तुझे ढूंढते हैं. परमेश्वर की ओर, खुदावन की ओर, यहोवा की ओर मुड़ो तो यहोवा तुम्हारी ओर मुड़ेगा. हालेलुया. Lord, as my soul seeks you, my heart longs after you, as the deer panteth after the streams of water, so does my heart pant after you. Lord, I find no respite in the world. Lord, I find no pleasure in a world without you, for you are my life, for you are my lifeline, King of glory. I want every moment of my life with you. With you, Lord. Hallelujah. ये दुनिया ना मुझको भाए, ये दुनिया ना मुझको भाए. गाइए मेरे साथ. तीर गमों के सबसे खाए, तीर गमों के सबसे खाए, कराते रहे हम शामो सवेरा, कराते रहे हम शामो सवेरा. ना मैं किसी का
ना कोई मेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। गाइए मेरे साथ। चश्मे लहू से मुझको नहला कर, चश्मे लहू से मुझको नहला कर, आबे हयात से मुझको पिला कर, आबे हयात से मुझको पिला कर, शाद किया दिल दुखी जो मेरा, शाद किया दिल दुखी जो मेरा। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। गाइए मेरे साथ। ये दुनिया ना मुझको भाए, ये दुनिया ना मुझको भाए, तीर गमों के सबसे खाए, तीर गमों के सबसे खाए, कराते रहे हम शामो सवेरा, कराते रहे हम शामो सवेरा। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का। गाइए मिलके मेरे साथ। ये हमारी ब्लेसेड होप है जो हम गाने जा रहे हैं। महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है। रहेगा मेरा अबदी वो डेरा, रहेगा मेरा अबदी वो डेरा। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, मैं हूँ यीशु का,
यीशु है मेरा। हालेलुया। वही आपका और मेरा सच्चा साथी है, वही आपका और मेरा चौपान है, मेरा गडरिया आपका गडरिया है, वही हमारा दूल्हा है, वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारी ज़िंदगियों का मकसद है। ही इज़ अ लाइफ लाइन, ही इज़ अ लाइट, ही इज़ द लाइट ऑफ माई कॉन्टिनेंस, ही इज़ माई स्ट्रेंथ, ही इज़ माई जॉय, ही इज़ माई comfort. In him I live, in him I move, in him I walk, in him I have my being. I dwell in him. Hallelujah. I live so secure in the secret chambers of his heart, as does he live in my heart. He is my respite. He is my shelter from every storm. No plague shall touch me. No plague shall come nigh thy my place. No pestilence that wreaks havoc at noontime or at night. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is my reward. The Lord is my shield and buckler. Why shall I fear? What can anyone do unto me? Hallelujah. As Jerusalem is surrounded by the mountains, so am I surrounded by the mercy and grace of the Lord. हालेलुया। मेरे संग संग प्रोक्लेम करें, कन्फेस करें, प्रोक्लेमेशन करें इन जिंदा वचनों की। हालेलुया, हालेलुया। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा, मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। विछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, जे मैं आखां के मैनू कुप हनेरा हुण छिपावेगा, जे मैं आखां के मैनू कुप हनेरा हुण छिपावेगा, तेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। खुदाया 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 तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। King David, he knew fully well that he was surrounded on all four sides by the Lord, that there was no escape from the presence of the Lord. Brothers and sisters, when this will dawn to you deep within your spirit that you are surrounded by Him,
And this will only come when you begin to walk in a deeper relation with deep inside Him. Superfluity of Christianity will not give you anything. You will have to delve deeper into Him. Delve deeper. Deep within Him. Hallelujah. Hallelujah. आइए मिलके गाएं सुबह का गीत खुदावंद के लिए। तड़के मैं तैनू ढूंढा। आप ढूंढ रहे हैं उसको, तलाश कर रहे हैं उसकी हजूरी की अपने जीवन में, या कैप लगा दिया शैतान ने? आप हो सकता है चर्चैनिटी के, क्रिश्चियनिटी के, चर्च के, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिश्चियन रिलीजन के तो सारे काम कर रहे हो, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं रहे हो, उसकी तलाश नहीं कर रहे हो, उसकी हजूरी की प्यास बुझ गई है। हालेलुया। क्या आपके अंदर प्यास है उसकी हजूरी के लिए? तो गाइए मेरे साथ। तड़के मैं तैनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तैनू ढूंढा। मेरी जान तेरी तिहाई, मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई, तन मेरा खुश्क साई, तुले जमीन जलाई, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, तड़के मैं तैनू ढूंढा, तड़के मैं तैनू ढूंढा। गाइए। तेरे नाल प्रीत मेरी, तेरे नाल प्रीत मेरी, हथ तेरा दे दलेरी, हथ तेरा दे दलेरी, जो चांदी जान मेरी, जो चांदी जान मेरी, मता मारदा पकाया, तड़के मैं तैनू ढूंढा, तड़के मैं तैनू ढूंढा। गाइए। राती जदों मैं सोना, तेरे ख्याली पौना, तेरे ख्याली पौना, तेरे परां दे हेठां, तेरे परां दे हेठां, खुश रहना खुदाया, मैं खुश रहना खुदाया, तड़के मैं तैनू
ढूंढा तड़के मैं तैनू ढूंढा तड़के मैं तैनू ढूंढा. Hallelujah. Lord, I seek your face. Lord, I seek your glory. Lord, I seek your presence. My soul is desperate, and I am constantly hungry for you, Lord. Hallelujah. I am hungry for your presence. I am thirsty for your glory. I long and cherish your presence. I find all the pleasure and all the joy, Lord, when you are around me. And Lord, I do not want to live any moment of my life without you. You live that moment in me, Lord. Life without you has no color. Life without you has no rainbow. Life without you has no pleasure absolutely. Life without you is a drudgery. Life without you is a burden, Lord. Hallelujah. Hallelujah. गाइए, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज आ रही है. सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है. चिड़ियाँ चहचहा रही हैं. सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है. चिड़िये भी शुक्रगुजारी के गीत गा रही है. चिड़िये भी तो शुक्रगुजारी के गीत गा रही है. सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है. ओ ओ सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है. सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है. हालेलुया. सुनिए उसकी आवाज को. खुदावंद सुबह उठाता है. भाइयों बहनों, मेरे thousands of experience है. अर्ली मॉर्निंग 3:30 एंजल विल कम एंड पोक इन माई साइड. और मैंने सुना लिटरली एंजल को कहते गेट अप. बहुत साल पहले मैंने एक दिन यीशु मसीह का जलाल देखा. मैं किसी एक छोटे से कमरे में लेटा हुआ था. एंड आई सॉ हिज रोब. मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, उसके हाथ देखे, उसकी रोब का निचला हिस्सा देखा. ही स्टूड बाय देयर. ही केम. मेरे को उसने उठाया और उसने बोला वो गीत मेरे लिए गा जो तू गाता है. भाई और बहनों, मेरे अंदर से सोता फूट निकला. जार जार रोने लगा. खुदावन ने मुझे बताया तू मेरे लिए गाएगा. तू प्रोफेशनली जैसे वर्शिप लीडर हैं जो लोगों के लिए गाते हैं, लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं. तूने परफॉर्म नहीं करना. तेरी आवाज़ मैंने अपने लिए रखी है, तू मेरे लिए गाएगा. हालेलुया, हालेलुया.
मैं सुबह उठ के 3 o'clock 3:30 समटाइम 4 ज़बूर गाता था खुदावंद के आगे। सर्दियों में मेरा जिस्म ऐसे होता था जैसे जैसे अवन हो, उसकी हजूरी भर देती है। जो सुबह उसे ढूंढते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी में शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। वही लोग अपनी ज़िंदगी में जिस्म की ख्वाहिशों के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर जयवंत होते हैं। वही लोग दुनिया में, संसार पे विजय पाते हैं। ये दुनिया का जो सिस्टम है, इसको आपने जीतना है, कॉन्कर करना है। ये कॉन्कर कर लिया यीशु मसीह ने, लेकिन आपको भी उसमें एक रोल प्ले करना है। हालेलुया। Devil is not going to give you an inch of a ground without fight. Make it very clear to you. Let me speak to your heart. Don't think the devil is going to give you any inch of the soil without giving you a good fight of your life. It's a warfare. Many Christians have no clue about the warfare that is so intense, that rages all around us at all times. It is a spiritual war, and you have to have all the armor of the Lord. God has already given us protection, covering. You have to put on the armor of God. Put on the salvation, helmet of salvation. नजात का टोपा पहनिए, मुक्ति का टोपा, मुक्ति की हेलमेट है सबसे ऊपर सर पे। रोज उसे डालें। इमेजिन करें आपने अपने ऊपर मुक्ति का टोपा डाला है, नजात का टोपा। ये नजात का टोपा आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को, आपके ख्वाबों को, आपकी डिज़ायर को, आपकी इंटेंशंस को जो डीप होती हैं, आपके सबकॉन्शियस डिज़ायर्स को, ये नजात का टोपा प्रोटेक्ट करेगा। नजात का हेलमेट, मुक्ति का हेलमेट, शैतानी तीरों को आपके अंदर नहीं घुसने देगा, ख्यालों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वचन में लिखा है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की झिलम। आपकी छाती को प्रोटेक्ट करती है धार्मिकता की झिलम, और ये धार्मिकता आपकी नहीं है। ये धार्मिकता आपको इसलिए नहीं मिली कि आप सुबह उठ के प्रभु के लिए गाते हो, या आराधना करते हो, या वचन खोजते हो, या भले भले काम करते हो, या प्रभु के लिए कॉन्सिक्रेटेड जीवन जीते हो। वो इम्पॉर्टेंट है सब कुछ, लेकिन ये धार्मिकता आपको मुफ्त में मिली है, फ्री में मिली है। ये आपकी धार्मिकता नहीं है भाई और बहनों। जो कैपिटल राइचियसनेस मिली है ना आपको, कैपिटल जैसे मूलधन होता है। जैसे मान लो मैं आपको 10,000 पाउंड दे दूं, 1,00,000 पाउंड दे दूं, 1,00,000 रुपया दे दूं, और आपसे बोलूं कि ये आपका, इसे आप बैंक में रखें संभाल के। आप उसे बैंक में डिपॉजिट करते हो। वो 1,00,000 जो डॉलर या पाउंड या रुपया, वो कैपिटल है। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो जो ओरिजिनल कैपिटल है वो जीसस है। हालेलुया। जीसस की ओरिजिनल कैपिटल अर्थात उसकी राइचियसनेस के द्वारा अब आपने राइचियस लाइफ जीना है। ये चीज़ नहीं सिखाई गई लोगों को कि आपको धर्मी बना दिया। अमेरिकन प्रीचर ने प्रीच किया द राइचियसनेस ऑफ गॉड विच इज़ बाय फेथ वी रिसीव्ड इट फ्रॉम क्राइस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेथ ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। दैट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। नोबडी डिनाइज दैट ग्लोरियस ट्रूथ। बट वो वहीं रुक गए। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि अब आपको भी राइचियस जीवन जीना है। वो कैपिटल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये राइचियसनेस की जो झिलम हम पहन रहे हैं, ये हमारी राइचियसनेस नहीं है, ये यीशु मसीह की राइचियसनेस है। लेकिन यीशु मसीह की राइचियसनेस, यीशु मसीह की धार्मिकता की झिलम आपके जीवन में तब काम करना बंद कर देती है जब आप खुद पवित्र और धर्मी जीवन नहीं जीते हो। तो ये इनफेक्टिव है। आपको मालूम, ये बहुत इम्पोर्टेंट
आर्मर है धार्मिकता की झिलम, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, ये आपके सिर्फ छाती को, फ्रंट को प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी बैक की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि मेरा धर्मी जन पीछे मुड़ जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इफ माई राइचियस वन टर्न्स बैक देन आई विल नॉट हैव एनी प्लेजर इन हिम। आप इस बैटल फील्ड से पीठ दिखा के भाग नहीं सकते। अगर आप इस संग्राम से पीठ दिखा के भागोगे, शत्रु के तीर आपकी पीठ को छलनी छलनी कर देंगे। आपको मालूम उसकी पीठ छलनी क्यों हुई? क्योंकि उसने आपकी बैक स्लाइडिंग अपने ऊपर ली है। आपके अंदर जो भागने की प्रवृत्ति है, लोग कुछ दिन प्रभु के संग चलते हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बेदारी आती है, उसके बाद बैक स्लाइड हो जाते हैं। यीशु मसीह ने वो एरो अपनी पीठ में ले लिए भाई और बहनों, ताकि मैं कंसिस्टेंटली प्रभु के संग चलूं। आपको मालूम, पीठ दिखा के जाना, इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है, बहुत भयानक है। वो लिखता है, वो लोग जिन्होंने मुक्ति का स्वाद चखा, जिन्होंने आने वाले युगों का दर्शन देखा, जो परमेश्वर के अद्भुत वायदों के वारिस हुए, जो अंदर से रोशनी से भर दिए गए, यदि वो लोग पीछे मुड़ जाएंगे तो प्रभु का वचन में क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में? वहाँ लिखा है, उन्होंने वाचा के खून को जिसके द्वारा वो शुद्ध किए गए थे, उसी लहू को उन्होंने अपने पांव के नीचे रौंद दिया। They trampled the blood of his son Jesus under their foot. Therefore there is no salvation for them except the anticipation of that great and horrible day of the Lord. वो जो यीशु मसीह के लहू को पांव के नीचे रौंद के उसे छोड़ के चले गए, अब उनके लिए मुक्ति नहीं है बाकी, बल्कि एक भयानक दिन की प्रतीक्षा है, जजमेंट के दिन की, जब उन पे सजा आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, उसने परिवार के घराने के अनुसार मेमना लेने के लिए कहा, और प्रभु ने कहा, तुम्हारा जो घर है उसके बाहरी दरवाजे पे, उसके एक दरवाजे के ऊपर ऐसे एक स्लीपिंग लाइन लगा देना, और जो दो बाइयां होती हैं दरवाजे की, पोस्ट होते हैं, दो साइड पे खड़े पोस्ट है, एक टॉप पे है, ये ताब का चिन्ह है। दिस इज द ताब। ये परमेश्वर का निशान है जो धर्मियों पे वो लगाता है। जीसस सेड, आई एम द अल्फ एंड ताब। अल्फ एंड ताब, अल्फा और ओमेगा। यीशु मसीह ग्रीक नहीं बोलता था, ही स्पोक हिब्रू, सो ही सेड, आई एम द अल्फ एंड ताब। ये ताब का चिन्ह हमारे ऊपर लगता है, तब शत्रु हमें छू नहीं पाता। ये ताब का निशान उनके घर के बाहर लगा, एक ऊपर डोर पोस्ट पे, दो साइड की डोर पोस्ट पे। आपको मालूम, परमेश्वर ने इजरायलियों को नीचे फ्लोर पे ब्लड उंडेलने के लिए नहीं कहा, मालूम? अगर वो प्रभु उनको नीचे भी खून का निशान लगाने के लिए कहता, तो जब इस्राएली लोग मिस्र से कूच करते, वो मेमने के खून को पैरों के नीचे रौंद देते। जो मेमने के लहू को पैरों के नीचे रौंदेगा, उसके लिए कोई निजात नहीं है, उसके लिए कोई मुक्ति नहीं है, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वो वेट करे उस भयानक जजमेंट की। ये लिखा है कलाम में। इसलिए ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस की बैक प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन आपकी बैक स्लाइडिंग के घाव यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे खाए हैं। हालेलुया। उसके बाद बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का कमरकस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ ये है बेल्ट ऑफ ट्रूथ। उस समय जब योद्धा लोग अपने वस्त्र पहनते थे, तो जो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस है, धार्मिकता की झिलम है, वो ऊपर की आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और आपकी नीचे की बॉडी, आपकी बेली डाउनवर्ड जो आपकी बॉडी है, उसके जो गारमेंट है, वहाँ पे टांगों के लिए कोई गारमेंट नहीं लिखा गया, लेकिन जो बेल्ट है, बेल्ट आपकी
उस झिलम को, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस को हुक करती है, अंदर से पकड़ के रखती है, और जो नीचे के आपके गारमेंट हैं उनको हुक करके रखती है। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की जो कमर कसा है, वो क्या करता है भाई और बहनों, आपके शरीर के ऊपर जो यहोवा परमेश्वर ने आर्मर दिए हैं युद्ध करने के लिए, उन आर्मर का कोई भी मायने नहीं रहता अगर सच्चाई का कमर कसा नहीं है, अगर आपके बेल्ट ऑफ ट्रूथ नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रूथ नहीं है, ट्रूथ नहीं है, सत्य नहीं है जीवन में उनके, इसलिए वो शैतान के हाथों थपेड़े खाते हैं और कभी भी शैतान के ऊपर जयवंत नहीं होते, कभी भी जिस्म शरीर के अभिलाषाओं पे जयवंत नहीं होते, कभी भी इस दुनिया पे विजय नहीं पाते, क्योंकि सत्य नहीं है उनमें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा समय आता है, बल्कि आ चुका है, जब पिता के सच्चे आराधक आत्मा में और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे। आपकी आराधना पिता तक पहुंच ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग आत्मा का दान पाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य भाषा खोबारा शाह था खाना गाबा नाजा ले सके तेने खेबेदो रोहला ही तीन जिमा खरा खजाला। अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे लोग आत्मा पा लेते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में सच्चाई नहीं होती। वो अभी भी झूठ, फरेब, अभी भी हर तरह के शारीरिक काम करते हैं, लेकिन जब आराधना करते हैं तो थोड़े समय में वो आत्मा में आ जाते हैं। खोबाला शाही खाता नजमा खरा खाता, लेकिन सत्य नहीं है। आत्मा और सच्चाई दोनों में मिलकर आराधना होगी पिता की। आपको आत्मा चाहिए क्योंकि पिता आत्मा है। यहोवा पिता को कोई छू नहीं सकता, उसके समीप नहीं जा सकता, यहोवा से किसी का रिश्ता नहीं हो सकता जब तक उसे पवित्र आत्मा ना मिले। पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक इकाई पूरी होगी, एक यूनिट पूरी हो गई आत्मा की। अब दूसरी यूनिट है सत्य। मैंने आपको पहले भी बताया, मूसा को यहोवा पिता ने 2 तख्तियों पे अपने 10 नियम लिख के दिए। यदि यहोवा पिता चाहते तो एक ही तख्ती पे 10 के 10 नियम लिख के दे सकते थे, लेकिन 2 पे दिए। पहली तख्ती पे यहोवा पिता ने मूसा को वो नियम बताए जो यहोवा के विषय में है। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र से छुड़ा के लाया हूँ। सबसे पहली डेक्लरेशन, आई एम द गॉड हु ब्रॉट दी आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट इनटू द लैंड ऑफ दिस ग्लोरियस लैंड ऑफ प्रॉमिस। मैं यहोवा हूँ। दूसरा, तू मेरे सन्मुख कोई मूर्तियाँ मत बनाना, आकाश में, पृथ्वी पे, पृथ्वी के नीचे, उन्हें झुक कर दंडवत मत करना। तीसरा, तू यहोवा के नाम को वेन में मत लेना, तू सबत को पवित्र मानना। ये चारों आज्ञाएं यहोवा पिता से कनेक्शन रखती हैं। लेकिन उसके नीचे 5वीं आज्ञा क्या है? तू अपने माता पिता का आदर करना। और मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे जो वर्ड आदर है, उस वर्ड का मतलब है हिब्रू में अपने माता पिता की सेवा करना, भावनाओं से, इमोशन से खिदमत करना, और अपने माता पिता के ऊपर पैसा खर्च करना, उनकी देखभाल करना। पहली तख्ती में परमेश्वर ने वो नियम दिए जिनका ताल्लुक यहोवा के साथ है। अब दूसरी तख्ती आप देखेंगे, दूसरी जो टैबलेट है उसमें वो नियम दिए हैं जिनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। मसीहों को एक दूसरे के संग रिलेशनशिप रखना नहीं आता। इधर से चुगली सुनते हैं किसी के विषय में, उधर से चुगली सुनते हैं और उस व्यक्ति को रद्द कर देते हैं। मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप लोगों की ओपिनियन पे किसी बंदे को जज करते हो। आप खुद नहीं किसी को जानते पर्सनली क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं एक बड़ी अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हिब्रू पर्सपेक्टिव और ग्रीक पर्सपेक्टिव, ये 2 चीज़ें हैं बाइबल में, पूरी दुनिया में ही। ग्रीक लोगों ने पूरी दुनिया को नॉलेज, इन्फॉर्मेशन दी है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ग्रीक स्टाइल से की जाती हैं। एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडोटस, बड़े बड़े दार्शनिकों ने सारी स्टेज सेट की दुनिया के ज्ञान की। ये दुनिया उसी
दिमागी ज्ञान, पाप में गिरे मनुष्यों के द्वारा पैदा किया ज्ञान, उसके द्वारा चलती है। आपको मालूम ग्रीक फिलोसोफर्स ने डॉक्ट्रिन बनाई कि अगर आपने किसी को जानना है तो आप उसे इंटरव्यू करो। इंटरव्यूइंग, आप देखते हो पूरी दुनिया में इंटरव्यू होता है। किसी को जॉब लेनी होती है तो इंटरव्यू होता है, किसी ने बैंक से लोन लेना होता है तो इंटरव्यू होता है, किसी को कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इंटरव्यू होता है, किसी को किसी मूवी में काम करना है तो उसकी इंटरव्यू और स्क्रीनिंग वगैरह सब इंटरव्यू का हिस्सा है। यहाँ तक कि शादी होती है ना आजकल तो भी इंटरव्यू होती है। शादी तो छोड़िए, आपको बच्चे स्कूल में एडमिट करवाने हैं तब भी पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के पीछे यूनानी फिलोसोफर की क्या डॉक्ट्रिन है, क्या विचार है, क्या मंशा है? क्योंकि ग्रीक लोग ये मानते थे, ग्रीक फिलोसोफर ये मानते थे, अगर किसी इंसान के बारे में आपने कुछ जानना है तो उसको सवाल करो, उसे इंटरव्यू करो, बहुत सारे सवाल करके उसके अंदर से चीज़ें बाहर लेकर आओ ताकि आपको पता लगे वो कौन है। ये है दुनिया का सिस्टम, लोगों को इंटरव्यू करके जानना। लेकिन बाइबल का सिस्टम क्या है, हिब्रू पर्सपेक्टिव क्या है? इब्रानियों को यहोवा ने अपना सच्चा ज्ञान दिया। इज़राइल एकमात्र ऐसी कौम है जिसके पास स्वर्ग के परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, सच्चा रेवलेशन है, सच्चा प्रकाश है। दुनिया की सारी कौमों को यहोवा ने ये ज्ञान नहीं दिया। अपनी महिमा, अपना जलाल, लेपालक पुत्र होने की सबसे बड़ी बख्शिश, अपने वाचाएं, अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने प्रॉमिसेस केवल यहोवा ने इज़राइल को दिए। अपने नबियों को उनके बीच में भेजा, अपने संतों को उनके बीच में भेजा, प्राचीनों को, पुरनियों को, बुजुर्गों को यहोवा ने केवल इज़राइल को दिया। बनी इस्राएल के पास यहोवा का प्रकाश है, पृथ्वी की और किसी कौम के पास नहीं। तो इब्रानी यहूदी ढंग क्या है किसी को जानने का? इब्रानी पर्सपेक्टिव ये बताता है, अगर आप किसी को जानना चाहते हो तो उसके संग समय बिताओ। स्पेंड टाइम विद समवन यू वांट टू नो। आज बहुत सारे लोग यहोवा पिता की इंटरव्यू करते हैं। कुछ इंटरनेट से पढ़ लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ इधर से ज्ञान इकट्ठा कर लिया। यहोवा पिता के संग समय बिताइए। अगर आप जानना चाहते हैं स्वर्ग के परमेश्वर को, आपको अपने जीवन की सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, वो है समय। आज लोग क्या करते हैं, वो खुद समय डिवोट नहीं करना चाहते, वो किसी एक खुदा के बंदे को ढूंढते, उसके पास जाते हैं, उसे चेक लिख के देते हैं और उसको बोलते हैं अपनी ब्लेसिंग में से हमें दे दे। भाइयों और बहनों, वो दे सकता है जिनको प्रभु अभिषेक करता है, मसा करता है। एक लिमिट है उनके पास। जिस तरह आपके प्रदेश में जितने सेनेटर होंगे, कांग्रेसमैन होंगे, जैसे हमारे इंडिया में सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, एमपीज और एमएलए बोलते हैं हम उन्हें, तो उनको सरकार से अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए एक कोटा मिलता है पैसे का, पर वो बहुत लिमिटेड होता है। अगर वो चाहें, वहाँ का एमएलए चाहे कि मैं एक मासिव ब्रिज बनवा दूँ, अगर वो चाहे कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुलवा दूँ, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल दूँ, या एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एरिना खोल दूँ लोगों के लिए, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना करने के लिए अथोराइज नहीं है। उसे चीफ मिनिस्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर चीफ मिनिस्टर देखेगा कि इसका बजट बहुत बड़ा है, हमारी स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो उनको प्राइम मिनिस्टर से फंड लेना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको यू हैव टू डिवोट टाइम, यू विल हैव टू गो टू द सोर्स। जो स्रोत है उसका नाम है यहोवा पिता। पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया भाई और बहनों, ताकि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के पास लेके जाए। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है, सुन लीजिए गौर से, वो बैठा है, राज्य कर रहा है वहाँ पे। अभी उसे समग्र संपूर्ण राज्य नहीं मिला है, लेकिन वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे, रूलरशिप की अथॉरिटी पे,
बैठा है पिता के दाहिने हाथ। पृथ्वी पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें पिता यीशु मसीह के पास लेके जाता है, यीशु मसीह से हमारी पहचान कराता है। फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें पिता के पास लेके चलूँगा। आई एम द वे टू द फादर। जीसस इज़ द वे टू द फादर। जीसस इज़ द डोर टू द फादर। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं पिता तुम्हें बहुत प्यार करता है। फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं, मेरा पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों आके तुम्हारे संग वास करेंगे। तो मैंने आपको बताना चाहा सत्य, ट्रूथ। अगर सत्य नहीं आपके जीवन में तो कुछ भी नहीं। ये सत्य की जो बेल्ट है ना, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, ये आपकी ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस को पकड़ के रख रही है। और आपकी जो नीचे पोशाक है जिसके संग सबसे नीचे हैं आपके पास मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते। आपको शूज़ मिले हैं ताकि आप यीशु मसीह का काम करो। मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते हैं। जो शूज़ आपने पहने हैं उस शूज़ का नाम ही है मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते। मेरे शूज़ पे नाम लिखा हुआ है कि मुझे उसके वचन को पूरी दुनिया में फैलाना है, धरती की कौमों में, पृथ्वी के छोर तक लेके जाना है। हर जाति, हर राष्ट्र, हर गोत्र, हर भाषा, हर नस्ल के लोगों के आगे मुझे जाके उस सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि मुझे जूते वही मिले हैं। खुशखबरी के मेल मिलाप के जूते मिले हैं कि मैन काइंड का पिता से मेल मिलाप हो जाए। तो वो शूज़ मेरे और जो मेरे लोअर गारमेंट है उन सबको पकड़ के रखता है सत्य का कमर कसा, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। इसलिए 2 तख्तियाँ हैं, वो एक सत्य की है, एक आत्मा की है। 10 नियम 2 तख्तियों पे इसलिए लिखे गए। एक तख्ती, एक टैबलेट का मतलब है आत्मा, दूसरी टैबलेट का मतलब है ट्रूथ। यही बात यीशु मसीह कहते हैं कि पिता की आराधना तब होगी जब सत्य है आपके अंदर स्थापित हुआ, सत्य से कमर कसी है, हालेलुया, और आत्मा पाया आपने, तब आप पिता की आराधना करोगे। और क्या लिखा है वचन में भाई और बहनों? वचन में प्रेरित पौलुस लिखता है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में कि विश्वास की ढाल ले लो। विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ। जब ये कपड़े सारे पहन लिए, आपके हाथ में ढाल चाहिए विश्वास की। क्यों? क्योंकि शत्रु आप पे आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। और शत्रु आपके ऊपर किस चीज़ पे अटैक करेगा? उसका ढाल का नाम क्या है? इसका शील्ड का नाम क्या है? शील्ड ऑफ फेथ। तो इसका मतलब शत्रु आपके विश्वास के ऊपर अटैक करेगा। आपके हृदय में विश्वास बीज के रूप में डाला गया है और विश्वास पनप रहा है। पवित्र आत्मा का निर्मल जल आपने उसको देना है और कलाम को बोना है, ताकि विश्वास का जो बीज डाला गया वो पौधा बने, पौधा बनने के बाद वृक्ष बने, वृक्ष बनने के बाद एक बड़ा दरख्त बन जाए। आपने काम करना है कंसिस्टेंटली। उस विश्वास रूपी बीज को पवित्र आत्मा का निर्मल जल देना है। और वचन में क्या लिखा है? याकूब की पत्री 1 अध्याय के 21 वचन में, ले असाइड ऑल नॉटिनेट एंड सुपरफ्लुइटी। हर तरह की गंदगी को, पाप को, अधर्म को अपने जीवन से निकालो। एंड विद ग्रेट मीकनेस, बहुत हलीमी से, टेक द इनग्राफ्टेड वर्ड ऑफ गॉड। ये कलाम इनग्राफ्टेड है। इनग्राफ्टेड का मतलब ये अंदर जड़ें छोड़ता है। इनग्राफ्टेड कलाम को ले लो, वचन को ले लो, जो तुम्हारी जानों को बचा सकता है। आपकी सोल, आपकी जान की अभी मुक्ति नहीं हुई। आपकी जान के अंदर ही आक्रमण होता है सोल में, और शैतान आके आपके विश्वास को कुचल देता है, लोगों के विश्वास को। पल में आपको क्या से क्या ख्याल आ जाते हैं, एक ही पल में कितने नेगेटिव विचार आ जाते हैं, एक ही पल में प्रभु की बातें आपके अंदर से उड़ जाती हैं। आपको मालूम, मैं एक अध्ययन कर रहा था जिसमें मैं ये देखा कि इन अंत के दिनों में स्ट्रैटेजी क्या है एनिमी की। शैतान की आत्माएं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो इन्वेंटर हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके अंदर शैतान की आत्मा आ रही है।
वो विच क्राफ्ट जादूगरी के संग मर्ज हो रहे हैं। शैतानी आत्माएं ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी रिलीज़ कर रही हैं, वो रेडिएशन, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंस आपके ब्रेन में से जब होके निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा आप विश्वासी हो ही नहीं, आपके अंदर से विश्वास उड़ जाएगा, सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर देगा वो। लोगों को उन रेजोनेंस के कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण, मालूम आपको, लोगों को सुइसाइडल टेंडेंसी हो रही है। इस समय पृथ्वी पे कोहराम मचा है, लोगों के अंदर तरह तरह के ख्याल, विचार, वो रेडियो एक्टिव एनर्जी है, ये माइंड को अटैक कर रही है लोगों के। यीशु मसीह कहते हैं लूका 18 अध्याय के 8 वचन में बड़ी एक खास बात कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, When I come to the earth, will I find faith? जब मैं आऊँगा क्या पृथ्वी पे विश्वास पाऊँगा? यीशु मसीह के कहने का मतलब, शैतानी आत्माएं लोगों के अंदर से विश्वास खींच लेंगी, लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, विश्वास की ढाल को लेके लड़ना है शैतान से। हालेलुया। जितना आप प्रभु के वचन में बढ़ेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना परमेश्वर के कलाम के अंदर घुस जाएंगे और कलाम आपकी हड्डियों में रच जाएगा, आपके बोन मैरो में घुस जाएगा, आपके ब्लड सेल के अंदर कलाम घूमेगा, उतना ही विश्वास की ढाल आपकी बड़ी होती जाएगी, विश्वास की ढाल का स्वरूप बढ़ता जाएगा। और वचन में लिखा है विश्वास की ढाल ले लो जिससे तुम शैतान के अग्निवाणों को बुझा सको। फायरी डार्ट, मालूम ये क्या होते थे? ये पुराने समय में एरोज होते थे। उन एरो के आगे एक सब्सटेंस लगा होता था, जैसे उन्हें तेजी से हवा में छोड़ा जाता था उन्हें आग लग जाती थी, और उनके अंदर आग होती थी और पॉइजन होता था। जैसे वो आग लगती थी इंसान के शरीर पे, उसके अंदर जहर होता था। ऐसे अग्निवाण शैतान छोड़ता है। तो विश्वास की ढाल को अपने हाथ में रखें। और फिर कलाम में क्या लिखा है? फिर लिखा है आत्मा की तलवार ले लो। भाइयों और बहनों, ये आत्मा की तलवार पवित्र आत्मा की तलवार नहीं है, आपकी आत्मा की तलवार है। आपके अंदर आत्मा है जिसे नया जन्म दिया गया है, जिसने मसीह के स्वरूप के ऊपर नया जन्म पाया। वो जो आपकी नए सिरे से सृष्टि की गई आत्मा है, उस आत्मा के हाथ में एक तलवार है। हालेलुया। रूह की तलवार, एक विश्वास की ढाल, दूसरी तलवार। अब दोनों का काम देखिए। जो ढाल है वो शैतान जब आक्रमण करेगा उससे बचा रही है। भाइयों और बहनों, मसीह जीवन का मतलब केवल डिफेंस नहीं करना है। मसीह जीवन का मतलब केवल शैतान के तीरों से अपना बचाव नहीं करते रहना है। बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन ही ये है, वो शैतान से मरते मरते बच रहे हैं। जब से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है वो कह रहे हैं जी हम तो शैतान से मरते मरते बच रहे हैं। बस ये जीवन नहीं है। शैतान के सामने उस विश्वास की ढाल से उसके हथियारों को हम निष्फल करते हैं, लेकिन हम केवल डिफेंस नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे। हालेलुया। कलीसिया डिफेंस मोड में है पूरे विश्व में। कोरोना वायरस आया ना, अब डिफेंस मोड में है। चर्चेस बंद हैं, मुंह पे मास्क लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, 2 यार्ड्स एक दूसरे से दूर रहना है, सैनिटाइज करना है अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को चेक करना, यही चीज़ें सब सीख रहे हैं लोग। फियर, डर लोगों के अंदर है, डर। कोरोना वायरस इतने लोगों को थोड़ा मार रहा है। मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम है। जिन लोगों को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उन लोगों की, जो बूढ़े हैं, उनकी डेथ हो रही है। फियर, शैतान का काम है डर भेजना। हालेलुया। जैसे
यहोवा पिता काम करता है स्पिरिट ऑफ फेथ के द्वारा, वैसे शैतान काम करता है स्पिरिट ऑफ फियर के द्वारा। विश्वास पवित्र आत्मा के ऑपोजिट है स्पिरिट ऑफ फियर। पवित्र आत्मा ज्योति का आत्मा है और डर का आत्मा अंधेरे का आत्मा है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? कलीसिया डिफेंस मोड में केवल ढाल लेके उसके पीछे छिप रही है, बचने की कोशिश कर रही है कि कैसे करके कोरोना निकल जाए, हम सरवाइव कर जाएं। भाई और बहनों, हमें अटैक करने के लिए बुलाया गया है। सुन लीजिए ध्यान से, यीशु मसीह क्या कहते हैं। जब पतरस यीशु मसीह से कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसी समय यीशु मसीह उससे कहते हैं धन्य है तू कैफास। पेट्रोस, दो वर्ड हैं, एक ग्रीक में है और एक हिब्रू में है। हिब्रू में कैफास और ग्रीक में पेट्रोस। यीशु मसीह कहते हैं तू पेट्रोस है। उसका नाम पहले शमाउन था। तू पेट्रोस है, धन्य है तू पेट्रोस है। इस चट्टान पे यीशु, वहाँ पे दो चट्टान शब्द है, ध्यान से देखिएगा। ग्रीक ग्रामर इतनी यूनिक है। ग्रीक ग्रामर में THED जो आर्टिकल लगता है, THED आर्टिकल 24 तरह से लगता है। 24 डिफरेंट उसकी ग्रामेटिकल कंपोजिशंस हैं। सोचिए जरा आप, कितनी वास्ट है ग्रीक। इंग्लिश इतनी वास्ट नहीं है। इंग्लिश असल में ग्रीक, लैटिन, जर्मन इन लैंग्वेजेस में से निकली है। तो वहाँ पे दो शब्द हैं, एक है पेट्रोस, दूसरा है पेट्रा। यीशु मसीह पतरस का नाम शिमयोन से बदल के पेट्रोस करते हैं। पेट्रोस का मतलब होता है कि बड़ा पत्थर। बड़े पत्थर का मतलब 100 क्विंटल का, 200 क्विंटल का पत्थर, इससे बड़ा पत्थर। लेकिन वहाँ पे दूसरा शब्द है, प्रभु कहते हैं इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जिस चट्टान पे यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाएंगे वो चट्टान पतरस नहीं है। उस चट्टान के लिए दूसरा शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा शब्द है पेट्रा। पेट्रा का मतलब एक ऐसी चट्टान जो ज़मीन के गर्भ को चीर के बाहर निकली है, ज़मीन के गर्भ से निकल के ऊपर जा रही है। उस चट्टान के नीचे नहीं आप जाके देख सकते कहाँ इसकी शुरुआत हुई है। जैसे जिब्राल्टर रॉक, ह्यूज बड़ा चट्टान। यीशु मसीह कहते हैं इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और क्या कहते हैं आगे? अपनी जलाली कलीसिया की बात कर रहे हैं। भाई और बहनों, कलीसिया में कलीसिया छुपी हुई है। कलीसिया जो पूरी है वो तो ईसाइयों का झुंड है, जिस वो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। वो प्रभु को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के लहू की कुदरत नहीं जानते, उनके पास परमेश्वर का जीवित कलाम नहीं है, वो जीवित परमेश्वर यहोवा के चेहरे के खोजी नहीं है। वो अपने क्रिश्चियन धर्म को चला रहे हैं, चर्चियनिटी को, क्रिश्चियनिटी को, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन चलाना चाहते हैं। तो प्रभु उनको बोलता है गो अहेड एंड डू इट। लेकिन एक रेमिनेंट है, एक बकिया है यहोवा का। हालेलुया। प्रभु कहता है इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सुने, सारा फर्स्ट पर्सन नाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं है कहीं भी। यीशु मसीह कहते हैं इस चट्टान पे, वो चट्टान भी यीशु मसीह है। वो चट्टान है यीशु मसीह का प्रगटीकरण। जब कोई व्यक्ति आत्मा में जान लेता है यीशु मसीह कौन है, कि वो देहधारी परमेश्वर है, प्रभु कहते हैं इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं चट्टान पे बनेगी कलीसिया, रेवलेशन की चट्टान पे, और मैं बनाऊंगा और कलीसिया भी मेरी होगी। आजकल बहुत सारे पास्टर लीडर्स ये सोचते हैं कि ये तो हमारा डोमेन है कलीसिया। वो किसी प्रभु के सच्चे भक्त को चर्च में आने नहीं देते, सच्चा कलाम फैलाने वालों को नहीं आने देते। जिनके संग यहोवा है, जिनके पास यहोवा की वाणी उतरती है, जिनके ऊपर यहोवा का प्रकाश है, जिनके ऊपर यहोवा का हाथ है, वो नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं। उनका स्टाइल, उनके पास जो वचन है वो उन्हें पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने चर्च के द्वार बंद किए हैं सच्चे सेवकों से। तो प्रभु ने अब क्या किया? प्रभु ने चर्च के ही द्वार बंद कर दिए। तो क्या चेंज लाया प्रभु? भाई और बहनों,
सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब जिनके पास प्रभु का सच्चा वचन है वो फैलाएंगे, और कईयों को तकलीफ हो रही है जिनकी मार्केटिंग अब नहीं हो रही उस पैमाने पे। समझ रहे आप मेरी बात? दे आर perturbed because it's God who opened up the church on a new platform. The Lord God opened up a church to a new online platform right now. You know, there is such a deep spiritual hunger in the hearts of people. People are running here and there. That's why they are running after false prophets. They want to know what future is holding for them. They have no clue where they have been ushered into. They have no inkling of the timing that they are living in. The leaders and the pastors never prepared for the church, but for the time in which enemy was about to unleash something upon the earth. Did any prophet in 2019 knew that a massive plague is going to hit the earth? Absolutely not. All the prophets, you go back, look into their Facebook, into their Twitter, into their social media. Go back. I charge you all, go back and look into their, social media posts. You will find in the month of December 2019, they were prophesying 2020 is going to be a year of glorious vision. 2020 is going to be a year of great harvest. 2020 is going to be a year of global harvesting of the soul. 2020 is going to be a year of crossing over into your destiny. 2020 is going to be the year of superabundance, blah, 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 blah. This is what they were deceiving people. Last night I gave you a very powerful word. Deceptive words. Jeremiah says, can a nation come to a point of no return? Can people willfully cross over such a precipice where God says, I will not save them? They cross the line. I put that question before you last night. This is Jeremiah's question. Jeremiah is very sarcastic. He's asking the southern kingdom, is there no balm in Gilead? Gilead was famous for that balm, and it was assumed that balm could even heal any kind of sickness. It could even heal broken heart. There is no remedy for the broken heart. That is why Jesus said, I have come to heal the broken heart, because he is the balm of Gilead. So he's asking, isn't there any balm of Gilead? What happened to the daughter of my people? She has been ravished. She has been ravaged, and the city has been pillaged. They looted, and everything is in great chaos. What happened? And he goes before God, and God says, these people, they turned me into an institutionalized religion. They would come into the sanctuary, they would come into the temple, and they would just brag, oh, house of the Lord, temple of God, temple of God, temple of God. Then God questions in 7th chapter of Jeremiah. He's questioning their morality. He's saying, you have plunged to the very, very bottom of the pit of morality. You have no moral value in you. Then God challenged their spiritual life. You are pervert. You worship demons and false gods. Then God talked about their purity and holiness. Then God talked about their social injustice. He said, you rob the sojourner, you do not take care of the widows and the orphan and the destitute and the needy. You shut your heart, you keep heaping up money. Jesus said, Matthew 6:19, he said, do not heap up wealth on the earth. Are you listening? I hope you are. God says, these people did this, these people did this evil, these people did this evil. I continually reprimanded them. I continually sent them my word. I said, you will live in this land if you obey me, if you keep my commandment, if you uphold righteousness, if you walk according to my covenant, then only I will let you live. I made promise. I cut covenant with your forefathers centuries ago that I will give this land for your children to live. Why am I not letting you live in the land? I made covenant. I made promises with Abraham, Isaac, and Jacob. What has pushed me to this point? God is saying. God is saying, you pushed me to this point of no return. And then he says to Jeremiah 7:20, he says, don't even pray for these people. Even if you do, I will not hear.
God said, don't cry, don't lament, don't intercede. I will not listen. And that is exactly what I told you in 2 Timothy chapter number 4, the first 4-5 verses. Apostle Paul says, these people will turn their ear away from the truth. कलीसिया ने अपने कान मोड़ दिए हैं सच्चाई से. नहीं चाहिए उन्हें ये सच्चाई. कलीसिया को चाहिए चर्च में अपने एजेंडा, अपने प्रोग्राम. पास्टर्स को चाहिए प्रॉस्पेरिटी, लैविश लाइफस्टाइल. ऑस्टिन मार्टिन, मर्सिडीज, ऑडी, one more Bangalore, another piece of real estate, another investment, another shops in the shopping complex, more investment in gold, more investment in silver, more this, more that. This recession period is actually a time to thrive. So invest in gold, invest in equity, share market, grow your wealth, grow your wealth. This is the time to harvest. So many false prophets are teaching people how they can multiply gold and resources right now, when God is angry and He has sent pestilence on the earth. Look at the framework of their mind. Look at where they are deluding people. Look at how covetous they have become. I told you, covetousness is idolatry. Greed. Greed. You know, the extreme side of prosperity gospel is covetousness. It's absolute greed. It is not the lifestyle that Jesus came to give us. Walking on the narrow path, pressing through the narrow way, denying yourself, putting the lust of the flesh on the cross, picking up your cross, being the disciple of the Lord, not heaping up, wealth and gold on the earth, but living for His kingdom, walking in righteousness, purity and holiness. That is the lifestyle Jesus gives us. Paul the Apostle says, be content with what you have. पौलुस भी वही बात कहता है जो जर्मिया ने कही. कलीसिया वहाँ पहुँच रही है जहाँ से वापस नहीं लौटेगी. आप सुन रहे हो ना, ये जो वचन मैं बोलता हूँ, इसका आपको लेखा देना पड़ेगा. भाई और बहनों, मैं सच्चाई से परमेश्वर के कलाम को आपके आगे ला रहा हूँ. मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए आपसे. अगर कभी मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ फाइनेंशियल सीड सो करने के लिए, मैं बहुत सारी अलग अलग जगह सो करता हूँ प्रभु के काम में. मैं किसी लालच के लिए नहीं कर रहा, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सच्चा कलाम मिले, और इसलिए कर रहा हूँ कि ये सच्चा कलाम आप दूसरों तक पहुँचाएँ. कितना अंधेरा है. पादरी लोग नॉर्थ इंडिया में बाबाओं की तरह जीते हैं, बड़े बड़े वैभवशाली बाबाओं की तरह. वो ऐसे हैं जिनको कोई मिल नहीं सकता. वो ऐसे हैं जो किसी के घर में नहीं जा सकते. हमारा प्रभु स्वर्ग के जलाल को छोड़ के पृथ्वी पे आया. अगर मैं ये कहूँ कि महिमा को छोड़ के पाप की दलदल में आया, तो भी ये न्याय नहीं होगा. इससे भी गंदगी में आया. अगर मैं कहूँ गटर में आया यीशु मसीह, इससे भी न्याय नहीं होगा. इससे भी गंदा हाल था. वो इसलिए आया कि हमारे बीच में डेरा करे. और ये आज के जो उसके चेले अपने आप को घोषित करते हैं, चेले तो कहते ही नहीं हैं, ये तो कहते हैं पापा, डैडी, मेजर, माइनर, ओवर आर्चिंग बिशप, हिज एक्सेलेंस, हिज होलीनेस बिशप, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या फैंसी टाइटल अपने नाम के आगे लगाते हैं. लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है एक दिन ये सब उसके आगे खड़े होंगे, और उनमें से जो वफादार होंगे वो उन्हें कहेगा, वेल डन माई फेथफुल सर्वेंट, मेरे वफादार नौकर. ये बोलेगा. अभी तो ये अपने नाम के आगे हिज होलीनेस, हिज एक्सेलेंसी, राइट रेवरेंड, मोस्ट बिशप, प्रॉफिट, चीफ अपोस्टल, चीफ पास्टर, मेजर, माइनर, हिज होलीनेस द अपोस्टल, अपोस्टोलिक प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, जो मर्जी लगाते जाओ फैंसी टाइटल. इट डजंट मैटर. आपके नाम के आगे क्या लगा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. यीशु मसीह के विषय में गैब्रियल फरिश्ते ने आके मरियम से कहा, दाउ शैल्ट कॉल हिम जीसस. तो उसका नाम यीशु रखना. डिलीवरर, साल्वेशन, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, रोशनी.
और यहोवा पिता ने उसके नाम के पीछे लगाया क्राइस्ट। पतरस पंतेकुस के दिन प्रचार करके कहता है यहूदियों से, तुमने यू स्लू द प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन के राजकुमार को तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, बट गॉड हैज मेड हिम बोथ लॉर्ड एंड क्राइस्ट, पर यहोवा ने उसे प्रभु बना दिया और मसीह बना दिया मुर्दों में से जिंदा करके। यीशु मसीह के नाम के पीछे क्राइस्ट, क्रिस्टोस, मसीह, मशाक, अभिषेक पाके आया हुआ। हालेलुया। नाम के आगे कितना फैंसी टाइटल लगा है ये डजंट मैटर, इट डजंट इम्प्रेस गॉड। हु यू आर, व्हाट गॉड पुट इन यू, what assignment God gave you, what purpose God invested in you, what you are unleashing in the earth for him that is important. Hallelujah. तो भाई और बहनों, कलीसिया को प्रभु ने कहा इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और क्या कहा प्रभु ने? The gates of hell shall never prevail. नरक के फाटक मेरी कलीसिया पे गालिब नहीं आएंगे। आपको मालूम फाटकों का मतलब क्या होता है? गेट्स का। किसी भी शहर के, सिटी के, किंगडम के गेट पे लड़ाई लड़ी जाती है। वॉर्स आर फॉट ऑन द गेट्स, देयरफॉर देयर वर वॉचमैन ऑन द गेट्स। फाटकों के ऊपर रक्षक होते थे, पहरुए होते थे, जागने वाले होते थे। कलीसिया यीशु मसीह की लड़ाई करने वाली बटालियन है। आपको अपने आप को डिफेंड ही नहीं करना है। कोई इतना बड़ा मास्क बना है जो आपकी पूरी आत्मा को छिपा सके शैतान से? आपको लड़ना है, लेकिन लड़ेंगे कब आप? जब आत्मा से भरे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये फैंसी टीचरों के पीछे मत भागिए। कानों की खुजली के कारण नए नए गुरु मत धारण कीजिए। टिक जाइए एक जगह, पकड़िए सच्चे कलाम को। अपने घर में बैठ के कभी 1 महीना बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? कभी कहा प्रभु से 30 रात मैं रात को 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करूंगा, या 40 दिन प्रभु मैं 4 o'clock उठ के 3 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा? अपने कुछ अपॉइंटमेंट बनाइए जीसस के साथ, कुछ कीजिए। समय हाथ से जा रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। आप अपनी दुनियादारी की चीज़ें इकट्ठी करते रह जाओगे। ये बंगला, वो इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा पैसा, और नई गाड़ी, और वार्डरोब थोड़ी बड़ी हो जाए, और घर थोड़ा फैंसी लगे, करते रहो। आपको मालूम भी नहीं लगेगा कब दूल्हा आ गया और अपनी दुल्हन को ले गया। हालेलुया। तैयारी कीजिए अपनी भाई और बहनों, तैयारी कीजिए। मैं आग्रह करता हूँ आपसे, ये समय अलग है। ये वो समय नहीं जो आज से 10 साल पहले था। बहुत एक्सेलरेशन हो रही है पृथ्वी के ऊपर, इवेंट्स इतनी तेजी से घट रहे हैं। प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है, प्रभु के आगमन बहुत निकट। कुछ कर लीजिए उसके लिए, कुछ पैसा उसके राज्य में भी बो दीजिए, कुछ जीवन के साल उसकी सेवा में भी दे दीजिए, कुछ कर लीजिए उसके लिए। हालेलुया। आपको मालूम, इस दुनिया से आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। आपका सोना चांदी, बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी बंगला, कुछ नहीं लेके जा सकते। लेकिन इस दुनिया में जो आपको दिया गया है, उसको आप पर्पसफुली प्रभु के कामों में अगर बो दें, तो अगली किंगडम में आपको मिल सकता है। वचन में लिखा है ये, प्रभु ने कहा पृथ्वी पे अपने लिए धन मत जोड़ो। तो इसका मतलब है कोई ऐसी जगह है जहां आप अपना धन जोड़ सकते हो। पृथ्वी पे अगर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पृथ्वी का ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां आप बो सकते हो, जहां पे आपको बहुत रिवॉर्ड और प्रतिफल मिलेगा। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जो ये शरीर जो मुझे प्रभु ने दिया है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं इसे प्रभु को अर्पण करता हूँ। मुझे जो बुद्धि, ज्ञान, समझ, जो वरदान सब कुछ प्रभु ने दिए, उन सब के लिए सबसे बड़ा वरदान मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह है। द अनस्पीकेबल गिफ्ट ऑफ ग्लोरी। I am not really concerned about. I have seen all the gifts of the Holy Spirit operating in my life. I never harnessed on the gifts. I never based my ministry upon the gifting, charisma, talent. The strength and power of what I do is Jesus. Only the King of glory.
ही इज़ द अनस्पीकेबल गिफ्ट। हालेलुया। तो गिफ्ट 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 के पीछे मत भागिए ज़्यादा, फलों के पीछे भागिए, फल पैदा कीजिए। यीशु मसीह फल खाने आएगा आपके पास। उसे भूख लगी, अंजीर के वृक्ष के पास फल खाने गया। वो आपके वरदान खाने के लिए नहीं आएगा आपके पास, फल खाने आएगा। हालेलुया। और प्रार्थना कीजिए, छोड़ दीजिए अब दोगला मसीह जीवन जीना, छोड़ दीजिए प्लीज़। अब सच्चा जीवन जिए प्रभु के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तू गिलाद की मरहम है, तू अपने लोगों के बीच में है। सच्चे लोग तुझे पाते हैं, तू टूटे दिल को भी चंगा करता है खुदावन, हर घाव को नरोआ कर देता है। प्रभु, तू हमारे जीवन को धन्य करता है। गिलाद की मरहम तू खुशबू से भरी हुई मरहम है। गिलाद की मरहम सबसे बढ़िया महंगी वाली खुशबू है। गिलाद की मरहम घावों को चंगा करने वाली मरहम है। गिलाद की मरहम अंदरूनी रोगों का इलाज करती है। गिलाद की मरहम हालेलुया हमें नया कुव्वत, नया मसा, नई सामर से भरती है। गिलाद की मरहम यीशु मसीह के पास आए। भाई और बहनों, वो पॉइंट ऑफ रिटर्न, जो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे मत पहुंच जाइए कि परमेश्वर कहे इनके लिए दुआ मत करना। उसने जिर्मिया को कहा अब इनके लिए दुआ मत करना, मैं नहीं सुनूंगा। प्रेरित पत्र पौलुस भी वही बात तिमोथियस को लिख रहा है। तिमोथियस की पत्री 4 अध्याय के ये पहले वचन से लेके वो कहता है अपने कान सत्य से हटा लेंगे, सत्य से हट जाएंगे। इनको कानों की खुजली दूर करने वाले गुरु चाहिए। कभी किसी प्रीचर को सुनेंगे, कभी किसी प्रीचर को सुनेंगे, प्रॉस्पेरिटी को, फलाने को, ढिमके को सुनेंगे। सच्चा कलाम के पीछे नहीं जाएंगे ये लोग। एंड दे विल टर्न देयर ईयर्स अवे फ्रॉम ट्रूथ। वही स्केरी बात, खतरनाक बात प्रेरित पत्र पौलुस बता रहा है कि कलीसिया उस सीमा रेखा को लांघ जाएगी, उसके बाद वो नहीं लौटेगी। 5 ही जाएंगी जिनके अंदर ज्योति जल रही है, जिनकी ज्योति गुल है वो नहीं जाएंगी। हालेलुया। ये सत्य है, ये सत्य वचन है। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित मेहरा के लिए, दिल्ली से। भाई को आशीषित करें प्रभु, वो आपके राज्य के लिए बोता है प्रभु। उसने उन बच्चों की सुधि के लिए बोया, इस भाई को बरकत देना। इसे प्रभु व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 11 वचन के अनुसार वहाँ लिखा 1000 गुना यहोवा तुझे बढ़ाए। प्रभु, भाई जो काम करना चाहता है उसमें इसको इतनी बढ़िया डील मिले कि इसे बहुत प्रॉफिट हो खुदावन। जो भी बाइंग करना चाहता अपने लिए उसमें भी इसको ऐसी ब्लेसिंग मिले खुदावन। बरकत देना। इंद्रप्रीत सिंह को बरकत देना, भाई को ब्लेस करना, अपना हाथ इसके जीवन पे बढ़ाना। इग्नेस लाल को, इसके घराने को प्रभु मैं तेरे खून में छिपाता हूँ, तेरी आशीष इसके घराने पे हो। ये सत्य वचन पे, सच्चे कलाम पे, सच्चे मार्गों में चलें खुदावन। तेरी सच्चाई की आवाज़ को सुन के कान खुदावन। साहिल भाई को जो पाकिस्तान से हैं अपने लहू में छिपाइए, आशीषित कीजिए खुदावन। इनके घराने पे बरकत दीजिए। सुनीता गुड़िया कंसवर को अपने खून में छिपाइए। सारा को अपने लहू में छिपाइए खुदावन। मैं आपका खून छिड़कता हूँ इन लोगों के ऊपर। ये तेरे प्रिय लोग, इनके घरानों पे तेरी ब्लेसिंग हो लॉर्ड। आई प्रे फॉर रश्मिकांत परमार, फॉर योर हैंड, फॉर योर ब्लेसिंग ओवर दिस मैन, हिज हाउस होल्ड। जॉन थॉमस को अपने लहू में छिपाइए। मैं आपके खून की कुदरत खोलता हूँ खुदावन। मैं विनोद क्रिश्चियन के लिए कनाडा से आपके लहू में इन्हें छिपाता हूँ। इनके ऊपर खुदावन आपकी और इनकी पत्नी के ऊपर विनोदनी क्रिश्चियन पे आपके लहू की आशीष को खोलता हूँ। डायना क्रिस्टी के ऊपर आपके लहू की आशीष हो प्रभु। अपनी इस दासी के घराने को फलवंत करना खुदावन, बरकत देना। यीशु मसीह नासरी जसवंत सिंह जो 4 o'clock से खुदावन तेरे दास के संग है, अपने इस बंदा को बरकत देना। तेरे लहू में जसवंत सिंह को छिपाता हूँ। सारा को तेरे लहू में छिपा देता हूँ खुदावन। मैं गुरविंदर सिंह के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तेरे खून में गुरविंदर सिंह को छिपाता हूँ। सिंगर शेरन को तेरे लहू में छिपाता हूँ। इसकी माता को, सिस्टर ज्योति एंजेलिना को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन। तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। खुदावन गुरविंदर भाई को बरकत देना। खुदावन सुनीता कौर जो आपकी बेटी ब्रिटेन से, उसे, उसके घराने को तेरे लहू में छिपाता हूँ। खास करके अपनी दासी को एनर्जाइज करना, अपने लहू में छिपाना, अपना जलाली हाथ उसके जीवन पे बढ़ाना खुदावन। अपनी हीलिंग प्रेजेंस को भेजना खुदावन। उसकी बॉडी को, सोल को, स्पिरिट को सैचुरेट कीजिए अपनी प्रेजेंस से खुदावन। उसके घराने पे कृपा कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु मैं आपकी बेटी तनुजा सेठ को आपके आगे लाता हूँ। She is hungry for you. She was with me from
the point I started at 4 o'clock. She has been worshiping you. She has been listening to your word. She has been praying. Bless her. Bless her household. I speak great favor of the Lord over her household, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless Tanuja Seth. Bless all her loved ones. Bless all she has. Bless everything that she touches her hand with. Hallelujah. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं दगन वाले भाई गुरदीप को भी तेरे खून में छिपाता हूँ, उसके घराने पे भी तेरी कृपा हो। खुदावंद मैं तेरी गवाही देता हूँ, तूने मुझे चंगा किया। एनिमी आया खुदावंद मेरे खिलाफ, पर तूने एनिमी के हथियारों को निष्फल कर दिया। तेरा धन्यवाद मुझे संपूर्ण चंगाई देने के लिए। मेरे घराने की तूने रक्षा की, इस प्लेग से हमें बचा के रखा, अपने लहू में हमें छिपा के रखा। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गाइए मेरे साथ। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसल। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसल। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नज़र। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नज़र। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गाइए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए